أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والسولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلند سنوات. فقال الله تعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولم ترسلوا. جس آیت کو پڑھنے کا شرف ملا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اگرچہ کہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی سی حیات ہے، لیکن ان کی زندگی میں ہمیں جہاد نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں ہمیں درس و تحلیل نظر آتی ہے، خطابت نظر آتی ہے، کس طرح سے نبوت کی حفاظت کی ہے، امامت کی حفاظت کی ہے، اسلامی نظام کے دفاع کے لیے جو جد و جہد کی گئی ہے۔ یعنی جناب فاطمہ کی زندگی ایک وسیع سمندر ہے کہ جس کے ہم ابھی سطح تک بھی نہیں پہنچے، غوطہ زن تو بہت دور کی بات ہے، جس کا انجام شہادت تھا۔ جناب فاطمہ الزہرا کی جہادی زندگی ہم سب خواتین کے لیے مثال ہے۔ جس آیت کو پڑھنے کا شرف ملا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس آیا میں بہت باریک نکات پیش کی گئے ہیں۔ بہت سے مفسرین اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ الی المودۃ فی القربی، خدا نے فی القربی کا لفظ استعمال کیا ہے، القربی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اہل بیت کی دوستی کے لیے خلق کیے جاتے ہیں، ان کے دل میں صرف اور صرف محبت اہل بیت ہوتی ہے اور کسی بھی غیر کی محبت اندر گامزن نہیں ہوتی۔ یعنی جو مومنین کے قلوب خداوند متعال نے بنائے ہیں اس میں ایک ایسا ظرف خدا نے بنایا ہے، وہ ایک ایسا برتن ہے کہ جس میں صرف اور صرف فی القربی کی محبت ہوگی، یعنی مودت اہل بیت کے لیے یہ دل مشخص کیے ہیں۔ جو مودت اہل بیت کی ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ مودت کسے کہتے ہیں کہ جیسے پانی کو، مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن مودت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ پاتا ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوئی ہے اس کے بعد اشخاص نے، کچھ لوگوں نے، صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو ذوالقربہ کہا گیا ہے، جن کے لیے ان کی اطاعت، ان کی دوستی واجب قرار دے دی گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہستیاں علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں، کہ ان کی محبت واجب قرار دی ہے خداوند متعال نے۔ اسی طرح اور بہت سی روایات میں مولا رسول اللہ نے آگے فرمایا کہ اے علی، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان میں محمد، تم علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہماری ذریت اور ازواج ہوں گے۔ ایک اور روایت میں صلی علی محمد وعلی محمد، جب اس کی اور تفصیل میں جایا گیا ہے، علماء اس کی اور تفصیل میں گئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اولاد زہرا کے حقوق کی رعایت کرنا بھی واجب ہے، کہ جو اولاد زہرا ہے، جو اب تک نسل اولاد زہرا کی سادات چل رہی ہیں، کیونکہ ان کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک نسبت ہے، ان کی جدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ ویسے تو ہم سب کی جدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، لیکن کیونکہ ایک خونی رشتہ ہے، ایک نسبتی رشتہ ہے، اس لیے تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں بلکہ خدا نے باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو کہا گیا ہے کہ جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے اور شفاعت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اولاد فاطمہ کے ساتھ احسان سے پیش آئیں۔ البتہ یہاں پہ میں سادات کو بھی کہنا چاہوں گی، جو سادات کرام میں موجود ہے، کہ وہ جو ان کو عزت ملی ہے کہ ان کو خداوند متعال نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جو سادات میں سے ہیں وہ غرور نہ کرے، کیونکہ روز قیامت ان کا حساب کتاب دگنا ہوگا۔
रिवायात में बयान किया जाता है कि सादात भी 3 किस्म के होते हैं। ज़ालिमतुल लिनफ्सिही कि वो सादात कि जो नेकियों और भलाइयों को छोड़ के बुराइयों की तरफ लग जाते हैं। कुछ ऐसे सादात होते हैं मुक्तसिदुन कि वो सादात कि जो अपने ज़िम्मे गुनाह होते हुए लेकिन वो नेकी को हमेशा अपनाते हैं, हर जगह पर नेकी करते हैं। और तीसरे हैं साबिकुन बिल खैरात, इससे मुराद उबारा हस्तियां हैं मासूमीन कि जिनका हर कौल जिनका हर फेल रज़ाए इलाही के लिए है। अब अगर आप किसी ऐसे सादात से मिलें कि जो एक तो होता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हर किसी से गलती होती है, जानबूझ के जो गलती की जाती है वो गुनाह ने कबीरा है। गलती से हो जाए फिर इंसान पशेमान हो और फिर आइंदा न करे वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां हमें कभी इस दुनिया में ऐसे सादात से अगर आप टकराएं कि जिनका ताल्लुक उन पहले गुरों से है कि नेकियों को छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ बुराइयों को पसंद करते हैं, तब भी उनका अदब और एहतराम आपने अपनी जगह पर करना है। हाँ, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर बहुत ही अदब के लिहाज से उनके साथ किया जाएगा। वज़ार मोहतरम जनाब फातिमा ज़हरा का ये आखिरी मजलिस है। जनाब फातिमा एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका करम सिर्फ किसी एक ग्रुप के ऊपर नहीं है, तमाम आलम इस्लाम के ऊपर है, यहाँ तक कि तमाम आलमीन के ऊपर है। कल मजलिस में सुना भी था आप लोगों ने कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम आलमीन की माँ है, तमाम आलमीन के लिए ये पूरी इंसानियत बीबी की एहसानमंद है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को इन नूरानी हस्तियों से जोड़ दें। इसकी एक मिसाल दूंगी कि जैसे ये एक बल्ब है, अगर मैं यहाँ इसको बैठ के देखती रहूं और इसकी तारीफ करती रहूं तो मैं खुद तो इस तरह रोशन नहीं होगी, लेकिन अगर किसी बल्ब को हम इसके साथ जुदा कर दें, देखिए ये बल्ब उसके साथ जुदा है तो ये चमकना शुरू हो गया है। यानी अगर हम इन नूरानी हस्तियों से जुड़ जाएंगे इखलाकी तौर पर भी और अमली तौर पर भी, तो हम वाकई हमारे दिलों में वो नूर भी पैदा हो सकता है। या या अल्लाहुम्मा सल्ली अला यानी हमें मोहब्बत के जरिए भी और अमल के जरिए जनाब फातिमा के नूर से मुंसलिक होना है। अजीजान, मुलाहिजा करें जनाब फातिमा की इतनी मुख्तसर जिंदगी लेकिन इतनी फजीलतें, और ये फजीलतें भी ऐसे ही हासिल नहीं हुई। खुदावंद मुतआल ने जनाब फातिमा का इम्तहान लिया है, क्योंकि खुदा का निजाम ऐसा है कि जब तक हिसाब किताब न हो खुदा तब तक कुछ अता नहीं करता। और खुदा जानता था कि ये उसकी जो खास कनीज है ये कुर्बानियों में, फिदाकारियों में, मार्फत के वजूद में कितनी आगे होगी, इसीलिए खुदा ने उनको बेपनाह फयूजात से नवाजा है। एक रिवायत में है कि जनाब फातिमा ज़हरा का नूर आसमान में फरिश्तों की आंखों को खीरा कर देता है। जैसे हम सूरज को देखते हैं तो हम उसकी तरफ देख नहीं पाते, इसी तरह से जो फरिश्ते हैं उनको जब जनाब फातिमा का नूर दिखाई देता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, इतना ताबान नूर। अब ये जो नूर है जो खुदा ने जनाब फातिमा को बख्शा है, हम इससे कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? हम इस दरख्शां सितारे से खुदा की बंदगी के लिए रास्ता देख सकते हैं, वो राहें तलाश कर सकते हैं जनाब फातिमा की पूरी सीरत देख के। जनाब फातिमा को अगर बचपन से शहादत तक देखा जाए तो शादी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पैगंबर के साथ एक ऐसा बर्ताव था जनाब फातिमा ज़हरा का कि उसकी बिना पर उनको उम्मे अबीहा कहा गया, यानी बाप की भी माँ। यानी वो खिदमतें, वो काम, वो मेहनत, वो मोहब्बत, वो मुशक्कत की जिसकी बिना पर बीबी को उम्मे अबीहा का लक़ब मिला है। उसके बाद मक्के में शब रोज किस तरह से गुजारे, शोबे अबी तालिब में कि जिस वक्त बाकायदा बाइकॉट हुआ था माशी तरह से, फिर वहीं पर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की और फौरन ही अबू तालिब अलैहिस्सलाम की भी वफात हुई। और उस लम्हात में, क्योंकि वो बहुत कड़ा वक्त था मेरे रसूल के ऊपर, रसूल उस वक्त बिल्कुल टूट चुके थे, एक तरफ ज़ौजा, दूसरी तरफ वो मेहरबान चचा। इसकी वजह से वो गम जो था उस वक्त रसूल अल्लाह के चेहरे से उस गम के अंबार को साफ किया है। अज़ीज़ान मौत
जनाब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में रिवायत है कि वो शोब अबी तालिब में 6 या 7 साल की थी। मुख्तलिफ और रिवायात भी है, पर क्योंकि मैंने ये रिवायात रहबर मौज़म सैयद अली खामनाई की किताब से पढ़ी हैं, तो उन्होंने ये बयान किया है कि शोब अबी तालिब में जनाब फातिमा ज़हरा 6-7 साल की थी और तकरीबन 3 साल पर ये अरसा मुहीत रहा है। बयान किया जाता है कि रसूल का सबसे मुश्किल तरीन जो दौर था वो ये शोबे अबू तालिब था, क्योंकि इसमें माशी तौर पर बायकॉट किया जा रहा था, न उनसे चीजें खरीदी जाती थी, न उनको चीजें दी जाती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया है कि उधर के लोगों ने बाकायदा पत्ते खाए हैं पानी से। बरली बरली मौला देरी बुलंदर सलावत। जनाब फातिमा ज़हरा एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जिन्होंने जब 6-7 साल की थी, आप खुद समझ सकती हैं कि एक छोटी सी बच्ची जब 6-7 साल की होती है तो उसकी कितनी वो किस तरह से होती है, एक बहुत मासूम सी बच्ची होती है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इससे पूछो कि कहना क्या चाहता है। जनाब फातिमा ज़हरा शोबे अबी तालिब में जिस अरसा में रही हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दिलसूज माँ की तरह रही हैं, एक मुशीर की तरह उन्होंने रसूल का साथ दिया है, एक जानसार का किरदार अदा किया है। आज के ज़माने में क्या एक ऐसी बच्ची, मैं 6-7 साल की बात नहीं करूँगी, लेकिन 11-12 साल की बच्ची अगर आइडियलाइज़ करती है जनाब फातिमा ज़हरा को, तो क्या वो ये नहीं देख सकती कि उस वक़्त उसके घर के हालात क्या हैं, कि माँ को चीखना ना पड़े और वो खुद ब खुद अपना काम अंजाम दे। अगर वो फातिमा ज़हरा की सीरत पे चलना चाहे तो बड़ी ख़वातीन तो दूर की बात है, मैं सिर्फ 11 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ कि जिस वक़्त जनाब फातिमा ज़हरा का उम्मे अबीहा का लक़ब दिया गया है, 6-7 साल की थी। लेकिन हमारे यहाँ कोई 11 साल की बच्ची भी अगर अमल करे जनाब फातिमा की जिंदगी पर, वो मोहब्बत दिखाए, तो वाक़ईन वो अपने इर्द गिर्द के हालात से समझ सकती है कि मेरे ऊपर ऐसी कौन सी चीजें वाजिब हो जाती हैं कि मुझे घर को किस तरह से संभालना है। बहरहाल जनाब फातिमा ज़हरा एक अजीम शख्सियत, रूहानी और मानवी मकाम में वो दूसरे मकामात से भी और जुदा थी। देखने में वो एक खातून थी, लेकिन मानवी एतबार से चमकता हुआ नूर था, इलाही नूर था, साले हस्ती थी। हत्ता कि उनके लिए रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं कि क़यामत में अली मोमिन मर्दों और फातिमा मोमिन औरतों को जन्नत लेकर जाएंगी। और यहाँ पर मौला अली की जो शख्सियत है जनाब फातिमा, उसी के हम पल्ला है, क्योंकि वो भी जैसे मर्दों को लेके जा रही है, ये भी खवातीन को लेके जा रही है। इसी तरह रसूल फरमाते हैं कि जब मेहराबे इबादत में फातिमा खड़ी होती थी तो हजारों मुकर्रब फरिश्ते उनसे मुखातिब होते थे, उनके पास आते थे, उनको सलाम करते थे। ये वो मकाम है जनाब फातिमा का, रूहानी मकाम, कि जिसको हम दर्क नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में जनाब फातिमा ज़हरा जैसी मलकूती हस्ती हम औरतों के लिए कोई भी नहीं है। उनकी ज़ाहिरी जिंदगी को देखें या उनके जिहाद को देखें, उनके इल्म को देखें, उनके इबादत को देखें, उनकी शौहर से खिदमत को देखें कि किस तरह से, यानी हर पहलू मौजूद है। जो खातून शादीशुदा है वो देखिए कैसे शौहर के साथ रही है, जो माँ बन चुकी है वो देखिए कि ममता का किरदार किस तरह से बीबी ने अपनाया है, बीवी की हैसियत से किस तरह से बीबी रही है, हिजरत बीबी ने की है। इसके अलावा सियासी पहलू है, बीबी का इनकलाबी पहलू है, मैदान में किस तरह से उन्होंने किरदार अदा किया है। और अगर इसी के बरअक्स आप इबादत में देखें मानवी हिसाब से, तो क्या सजदे करती थी, क्या रुकू और सुजूद में होती थी, इबादत की ऐसी इंतहा, दुआ, तिलावत, तजर्रुजारी, ये बेहतरीन दलील है। और खुदा ने हमें नमूना बनाया है जनाब फातिमा को, यानी बताया है कि एक औरत को इस्लाम किस शक्ल में देखना चाहता है,
किस शक्ल में? यही वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती है कि जिसकी शक्ल में औरत को देखना चाहता है। ये मुअज़्ज़मा बचपन में जब मक्के में थी तो मक्के में एक अलग तरह की सख्तियां थी कि ताज़ा ताज़ा इस्लाम आ रहा था, और आप सब जानते हैं कि रसूल के ऊपर ओझड़ी डाल दी जाती थी, रसूल को अजियत दी जाती थी, जब घर आते थे खून खून हुआ करते थे। तो उस वक्त जनाब फातिमा ने किस तरह अपने बाबा को संभाला। फिर जब शोबे अबी तालिब जाना पड़ा, वहां पे भूख प्यास की शिद्दत थी, वो सारी सख्तियां जनाब फातिमा ने भी झेली है, हत्ता कि सिन में बहुत बहुत छोटी थी। फिर हिजरत मदीना के बाद आपकी शादी एक ऐसी शख्सियत से हुई कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजारी है। मौला अली और जनाब फातिमा ज़हरा 11 साल एक साथ रहे हैं, लेकिन इन 11 सालों में जनाब फातिमा ज़हरा का 3 या 2 महीने भी ऐसे नहीं गुजरे कि मौला अली आके दोबारा चले जाया करते थे जिहाद पे, यानी वो भी एक सख्त जिंदगी थी अपने शौहर के बगैर। बीबी का इल्म अगर हम देखें तो वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद नबवी में एक एक घंटे के फसीह बलीग और ऐसे खुतबात दिए हैं कि लोग दंग रह जाते थे, हत्ता कि उस जमाने के लोग शायरी में बहुत आगे थे। उस वक्त वो बीबी के ये खुतबात सुन के चुप हो जाते थे। इसके अलावा अगर इबादत की बात करें तो बीबी इतनी इबादत करती थी कि उनके पैर भरम कर जाते थे, उनके बच्चे अमूमन देखते थे। इसी तरह एक वाकया बहुत मशहूर है कि जब नमाज पढ़ रही थी कि औलाद फातिमा इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए अपनी वालदा के पास, कहा कि वालदा आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करती? जब भी देखो आप दूसरों के लिए दुआ करती हैं, दूसरों के लिए रोती हैं अपनी नमाजों में। तो फातिमा कहती है, या बुनैया, ए मेरे बेटे, पहले पड़ोसी फिर हमारी बारी है। ये एक सबक है हमारे लिए, ये एक नुक्ता निगाह है। यहाँ हमारी समाजी जिम्मेदारी क्या बनती है? घरेलू तो अलग है, ये समाजी जिम्मेदारी बताई जा रही है। ये दरसे फातिमी है, ये मारफत फातिमी है। बर मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु। बस आखिर में दुआ करते हैं कि खुदाया बिहक़्क़े अहले बैत हमें तौफीक अता करे कि वाक़अन सीरत फातिमा ज़हरा पे हम तमाम मोमिनात चल सकें, हम अपनी औलादों को सीरत फातिमा पे चला सकें, हम अपने खानदानों को चला सकें, यहाँ तक कि जनाब फातिमा की सीरत पे चलते चलते जब हम अपने खानदान को भी दुरुस्त कर लें तो हम पूरे माशरे को फातिमी माशरा बना दें। आमीन या रब्बल आलमीन। बज़ाने मोहतरम, आज बीबी फातिमा का पुरसा लेना है, ये आखिरी मजलिस है। इसके बाद ये गिरिया करने का पता नहीं दोबारा मौका मिले, हम दोबारा इस फर्श अज़ा पे आ सके या ना आ सके। अज़ीज़ाने मोहतरम, हम मौला अली का पुरसा किसको देते हैं? जनाब फातिमा तो ज़हरा को। रसूल का पुरसा हम जनाब फातिमा को देते हैं, हसन और हुसैन का, यहाँ तक कि शहदाए करबला सब का, लेकिन जनाब फातिमा का पुरसा किसको दें? उलमा बयान करते हैं कि आपका वक्त का इमाम, उसको पुरसा दें। आए इमाम जमाना को पुरसा देते हैं। अरे फातिमा की जो 70 और 90 दिन जिंदा रही है बाद अज़ रसूल। अजीजान, इस वक्त मेरे मौला अली का दिल बहुत शिकस्ता है, मेरे मौला अली का दिल हमसे भर चुका है। वो अपनी अजीजा को अलविदा कह रहे हैं, वो अपने पैगंबर की उस अमानत को पैगंबर को लौटा रहे हैं। मौला अली का दिल हमों से भरा हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे भी दर्ज है कि मौला अपने इरादों में मुस्तहकम है, मौला के इरादे तज़ल्ज़ुल नहीं हुए हैं। चाहे वो जिस्म उनका टूट चुका है, उनका दिल गम से भर चुका है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक दफा अबा सलत से कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारी इमाम हस्तियां, इनको जब भी अपनी वालिदा ज़हरा याद आती थी, हमेशा अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे। कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज कोई सुने। अमीरुल मोमिनीन के बारे में भी रिवायत है कि जब ज़हरा इस दुनिया से चली गई, मौला कुएं में अपना मुंह डाल के गिरिया करते थे। इमाम क्या कहते होंगे, कुएं में क्यों रोते थे? कुछ लोग कहते हैं कि मनाजात करते थे। मनाजात तो सब आशकारा है। इमाम हुसैन का गम, इमाम हुसैन के मसाइब तो आशकारा है। इमाम अली जरूर हो ही नहीं सकता कि जनाब फातिमा को याद ना करते हो सकता है कि अभी भी किसी कुएं में मुंह दे के मौला कह रहे हो, फातिमा फातिमा मुझे तो बहुत याद आ रही हो, फातिमा मैं अकेला रह चुका हूँ। बज़ानी मोहतरम, मौला रज़ा ने भी जब दरवाजा बंद कराया होगा तो अपना मुंह अपने घर के कोने में करके कहा होगा,
بیوی کی جان چلی گئی ہے، لعنت اللہ القوم الظالمین۔ خدایا خدایا بحق